Hello my dear students, how are you? Hope you all are doing well. In the last class we were talking about moderates in the Indian National Congress. We have seen the moderate phase. In today's class we will be talking about the extremist phase. The extremist phase is from 1905 to 1920. The extremist phase is very important. Exam point of view, there are so many questions been asked from the extremist phase. First of all, you should remember the extremist phase, that is from 1905 to 1920. So who were the extremists? The extremist or the aggressive nationalist believed that success could be achieved through bold means. Now what do you understand by the word bold means? Bold means hartal, bold means boycott, bold means boycotting of schools, colleges, and non-cooperation and mass struggle. So these were the bold means which were used by the extremists. So in the last class when we were talking about the moderates, the moderates used very soft means. The soft means of moderates were passing of resolution, meeting, and giving memorandums. So these were the soft means of memorandums, modes of moderates. Extremists did not believe in this type of means. Extremists believe in the bold means. So who were the extremists? Who were the extremist leaders? The main leaders of extremists were, as we all know, Lal Bal Pal, that is Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh, and other leaders I will be talking in the next class. The main objective was to attain, the main objective of the extremist was to attain complete independence. I mean to say, to attain Swaraj. Even Tilak mentioned, Swaraj is my birthright and I will definitely attain it. So, what do you understand by this? This means extremists चाहते थे कि जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता की व आज़ादी मिले, लेकिन मॉडरेट्स ये चाहते थे कि हमको आज़ादी मिले लेकिन ब्रिटिश रूल काफ़ी अच्छा है और कुछ सालों बाद अगर हमको धीरे धीरे आज़ादी मिलती है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा. बट वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इमीडिएटली हमको इंडिपेंडेंस मिले, और इमीडिएटली इंडिपेंडेंस, ये हमारा देश है, हमारे देश में हमारा राज चलना चाहिए, ना कि अंग्रेजों का, ना कि ब्रिटिशर्स का. सो दे शुड लीव आवर कंट्री एज फास्ट एज पॉसिबल and we should get independence as fast as possible. So this is all about extremists. So what were the causes of the rise of extremists? So क्या कारण था जिनकी वजह से ये जो extremists है ये rise हुए? What was the reason? The reason was the failure of the moderates. Moderates fail हो गए. Moderates ने अपनी demands रखी अंग्रेजों के सामने, but उनके कई सारी demands पूरी नहीं हुए. Only one exception we all know, 1892 act. ये एक्ट छोड़ के जो है हमने 1892 का एक्ट जो है लास्ट क्लास में देखा था. लिविंग दिस एक्ट they got nothing, and the means of moderates were very slow. Resolution, passing resolutions, memorandums and all. So ये कुछ फल नहीं मिल रहा था moderates को. So this was the main reason. The failure of the moderate was the main reason for the rise of extremists. The second reason, famines and plague. So in the year 1896 there was famine and plague in India, and the people of India were suffering a lot. So that was it. The time was of British rule. There was British rule in India, and the British government was not helping Indians. लोगों को पकड़ा जाता था और आइसोलेशन में रख दिया जाता था और अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था. जब प्लेग हुआ था, कई लोग भुखमरी से मर रहे थे, और हमको पता है कई दरबार भर रहा था. जैसे हमने लास्ट, अगर आपको पता होता, 1877 में दिल्ली दरबार भरा था लिटन के समय पर. 1911 में दिल्ली दरबार भरा था. तो ये जो दिल्ली दरबार भर रहा है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं. तो ये दरबार बनाने के लिए रानी को जो है मान सम्मान देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, बट आप जब इंडियंस को हेल्प करना चाहिए तब आप हेल्प नहीं कर रहे हो. सो ये भी एक रीजन है. और मॉडरेट्स 1885 में कांग्रेस ऑलरेडी अस्तित्व में आ चुका है. कांग्रेस के अस्तित्व में आने के बाद में मॉडरेट जो लीडर्स हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ अपना रुख रख ही नहीं रहे, लोगों के लिए बात नहीं कर रहे. सो दिस वेर द रीजंस, वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. The third reason is the economic condition of the people became worse. As we all know, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फायदा जो है मदर कंट्री को ज़्यादा हो रहा था. कॉलोनाइजेशन की वजह से मदर कंट्री को फायदा ज़्यादा हो रहा था, मतलब ब्रिटेन को फायदा ज़्यादा हो रहा था. और जो हैंडीक्राफ्ट हमारे कंट्री में हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह डाउन हो रही थी. और हमारे कंट्री के अंदर में जो ज़मींदार है उनको बाद में प्रॉब्लम्स होने लगे, फार्मर्स को प्रॉब्लम्स होने लगे. सो दिस वेर वन ऑफ द रीजन, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल. और दादा भाई नौरोजी ने अपने इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ में बताया है किस तरीके से लूट मची हुई थी. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ अछूतों की तरह व्यवहार किया जा रहा था. जब आप अछूतों की तरह व्यवहार कर रहे हो तो आप हमारे साथ कैसे बैठोगे, हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सुनोगे. मॉडरेट्स अपना प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप हमारे को सही में सुनोगे जब आप हमसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. सो इज दैट पॉसिबल, इज इट गोइंग टू गेन. सो द नेक्स्ट पॉइंट,
is Russo-Japanese War of 1904-05. ये जो वॉर था, इस वॉर में जापान एक एशियन कंट्री, एक छोटा सा एशियन कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, यूरोपियन कंट्री जो एरिया में सबसे बड़ी है, साइज में सबसे बड़ी है, रशिया को जापान जो है हरा रहा है. तो व्हेन जापान इज डिफीटिंग रशिया इन द रूसो जापानीज वॉर ऑफ 1904-05, सो इंडिया को ऐसा लगने लगा, इंडियंस को ऐसा लगने लगा कि इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, तो ब्रिटेन तो बहुत छोटा है, एंड इट्स वेरी इजी फॉर अस आल्सो, वी कैन आल्सो विन, एंड वी कैन, हम भी उनको जो है उनका जो है उनको डिफीट कर सकते हैं, उनको ओवर पावर कर सकते हैं. सो दिस वेर द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. इन द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, और व्हाट आर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ मॉडरेट्स. तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स सारे जो है ये याद रखने हैं. देयर आर फ्यू अदर कॉजेस व्हिच विल बी लुकिंग फॉरवर्ड. So we were looking into causes for the rise of extremism. So the immediate cause for the rise of extremism was the reactionary rule of Lord Curzon. Lord Curzon came to India in the year 1899 and he created an havoc. He tried to stop the nationalism among the Indians. He realized that यूनिवर्सिटीज़ वो जगह है जहाँ से राष्ट्रीयत्व की भावना निर्माण हो रही है, नेशनलिज्म ग्रो हो रहा है. सो उसने जो है ही बॉट इन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट and he tried to reduce the autonomy of the universities. He realized that students are awakening, the nationalism is coming into students from these universities. So उसने जो है यूनिवर्सिटीज को जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में तब्दील करने की कोशिश की. बहुत सारी चेंजेस उसके अंदर में की. You can read Universities Act of 1904 which was brought by Lord Curzon. He passed the Calcutta Corporation Act, एंड कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू जो है उसने लोकल बॉडीज़ के अंदर में जो इंडियंस का पावर है वो उसने कम करने की कोशिश की. कई ऐसे ये जो चीज़ें हैं ये उसने लाने की कोशिश की जिसकी वजह से जो है जो एक्सट्रीमिस्ट है वो आग बबूला हो गए, एंड दे गॉट इनटू फायर. सो एंड द डेंजरस, द मोस्ट वर्स्ट इफेक्ट, द डिसीजन ऑफ लॉर्ड कर्जन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. The partition of Bengal. He realized Lord Curzon realized that Bengal is a place where there is Hindu-Muslim unity, and if I break that Hindu-Muslim unity, definitely I can succeed. So these were the few causes for the rise of extremism. Extremists in that independent स्वतंत्रता संग्राम के समय पे ये वो समय है जब जो है extremists rise हुए. So the methods of extremists, the methods which extremists used were very different when compared with moderates. Extremists had no faith in British sense of justice, and they did not believe in their fair play. They believed that political rights have to fought for. So extremists को ऐसा लगता था कि जो political rights है वो ऐसे मांग के नहीं मिलने वाले. आप मेमोरेंडम रखेंगे, आप मीटिंग्स करेंगे, आप अपने पॉइंट्स आगे रखेंगे और आपको आपके राइट्स मिल जाएंगे पॉलिटिकल. दिस इज नॉट दैट. यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स और तुमको छीन के लेने हैं कोई भी हालत में. दिस इज व्हाट दे थॉट ऑफ. सो द मेथड इंक्लूडेड नॉन कोऑपरेशन, नॉट कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट कोर्ट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. बॉयकॉटिंग स्कूल्स, कॉलेजेस. अरे वेस्टर्न एजुकेशन का कंप्लीट आप बॉयकॉट करो. रातों रात जो है बंगाल नेशनल कॉलेज ओपन किया गया था 1906 में, और औरोबिंदो घोष उसके प्रिंसिपल बने थे. सो प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. स्वदेशी गुड्स का जो है उन्होंने जो है स्वदेशी का जो है समर्थन और विदेशी का बहिष्कार. सो दिस वाज वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन. सो जो नेशनल एजुकेशन है, जो राष्ट्रीय एजुकेशन है उसका प्रमोट करना. जैसे कि मैंने आपको बताया बंगाल नेशनल कॉलेज ओपन हुआ था, उसके प्रिंसिपल औरोबिंदो घोष बने थे. और पूरे इंडिया में जो है नेशनल एजुकेशन ही दिया जाए. हमारा जो एजुकेशन है वो काफ़ी रिच है व्हेन कंपेयर्ड विद वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन. सो दीज वर द मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. So hope you have understood about extremists. So what are the takeaway from this class? So the initial phase of extremists, you have to remember, that is 1905 to 1920. The leaders and the leaders of extremists, Lal Bal Pal and Aurobindo Ghosh, and the reason for the rise of extremists. You have to remember the causes for rise of extremists. You have to remember the methods of extremists. So these are the takeaway points. In the next class we will be discussing about the leaders, the extremist leaders, and what all their achievements were. So thank you and have a nice day. Hope you all are understanding whatever I am teaching you. If you all are liking these lessons, please share, like and subscribe. Thank you and have a nice day.